नमस्कार, मैं विजय कुमार, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबू, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। आपका हिमाचल फ्री बायोलॉजी क्लासेस, बायोलॉजी 10+1 क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, you people are among the lucky people that you have opted biology in your 10+1 class. I wish that you all will become doctor in the future. As we are in the lockdown period due to COVID-19, you know, it's an epidemic now in all over the world. Also in our country and also in our state, some of the district, they are suffering from COVID-19. COVID word stands for CO for corona, VI for virus, and D for disease. This particular 19 means it is the month of December 2019 when this first case of this disease is in China, occur in China. So this is the COVID-19. It is a viral disease. As a government teacher, it's my duty, and I am happy to serve my duty and sharing my experiences with you guys. प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन में मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को साझा कर पा रहा हूं। आई विल स्टार्ट विद द बायोलॉजी वर्ड बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेन यू स्टडी बायोलॉजी देन यू विल एक्सपीरियंस some terms, some words which are new to your vocabulary or dictionary. आप कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड सुनेंगे, ऐसी टर्म सुनेंगे जो आपके vocabulary में इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी थी। The reason is that because the earlier scientists in the field of biology, they are Greek and Romans. They are Greek and Romans. So they know the language, two languages. One is Greek and one is Latin. Latin is now a dead language. Dead language ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है बेटा जिसमें नए शब्द नहीं जुड़ते हैं, पर ग्रीक लैंग्वेज है। The terms or the words they came from their origin is Greek or Latin. So it doesn't mean that we have to go for any particular course for the Greek and Latin language. हमें कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएंगे कि हमें वो धीरे धीरे अपने आप ही जो ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज है वो आ जाएगी। ठीक है, इसलिए नीड नॉट टू वरी कि what kind of terms are there. Usually people listen कि बायोलॉजी में कुछ नए ही तरह के शब्द होते हैं, तो do not irritate, need not to get irritated, need not to get worried. I will make all the terms as much as easier as your own mother tongue is easier to you people. तो आप चिंता ना करें, जैसे हमारी मातृभाषा मान ली इजी है, वैसे ही ये टर्म्स भी आपको इजी कर दी जाएंगी। आई विल स्टार्ट विद द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। विज्ञान की एक ब्रांच है। कैसी ब्रांच है देखते हैं। देयर आर टू वर्ड्स, जस्ट वी हैव टू स्प्लिट द वर्ड्स। हमने स्प्लिट करना है वर्ड्स को, हमने तोड़ना है वर्ड्स को। कैसे? देयर आर टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स आर देयर इन बायोलॉजी। वन इज two Greek words are there. I can write down like this.
The word or the term biology consists of two Greek words. There are two Greek words. Which one? Which one? One is bios. Bios means living. Bios mean living. Living are those which have life. So the living is synonymous to life. जिसमें जीवन है वो living है, वो जिंदा है, और जो living है उसमें जीवन है. Those which are living, they have life, and those which have life, they are living. And the second one is logos. Means Greek language में logos कहा जाता है, and in English it means study. Study. So now it is well clear to us, it is the study of the living organism or the study of the life. So I can write down it as, the definition is like that. This, the branch of biology, the branch of science. Biology is the branch of science which deals with the study of what? Living organism. Living organisms or life. Biology is the branch of science which deals with the study of living organisms or the life. ये है बायोलॉजी. क्लियर? हम क्या पढ़ेंगे? हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे. We will study about the basis of the life. We know the basis of life is the cell. कोशिका जिसे हिंदी में कहा जाता है, जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम पढ़ा है मैं उनके लिए बता दूं, उसे कोशिका कहा जाता है और सेल कहा जाता है. Is it clear now? So what we are going to study in biology, let us see. Nowadays more than the 100 branches are there of biology. ठीक है, अब तो सैकड़ों ब्रांचेस हैं इसकी बायोलॉजी की, and we will study the branches of the biology before going to the syllabus. I must deal all these branches with you so that every aspect of the biology got clear to you. After doing these branches, we will go for and we will discuss the syllabus. इसके बाद हम syllabus पढ़ेंगे, syllabus के बारे में जानेंगे. You know, branches are like that. The main branches. Biology have two main branches and other branches. Main branches and other branches. How many main branches are there? Two. One is called as zoology and other one is called botany or phytology. All it's same. बॉटनी को ही फाइटोलॉजी कहा जाता है. वैसे ही देयर आर टू वर्ड, जू एंड लॉगोस. तो मैं लिख रहा हूं द टर्म जूलॉजी consists बनी होती है of two words, two Greek words. Which one?
One is Jew or June and one is logos. Logos को तो हमें पता लग ही गया, बायोलॉजी में हमने पढ़ा. It means study. जू और जून की मैं बात आपको बताता हूं. When we go on a trip, जब हम टूर पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, when we came back, वापिस आते हैं and share the experiences with our friends. अपने दोस्तों के साथ हम बात करते हैं और कहते हैं कि we have visited a zoo and I have seen elephant, I have seen this lion, tigers. Okay. जब हम जू में जाते हैं तो हमने वहां पे क्या देखा बेटा? एनिमल्स देखे. जू इज अ ग्रीक वर्ड बेसिकली. जू और जून इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स इन इंग्लिश एनिमल्स. तो इन zoology what we will study, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, the branch of biology which deals with क्या बेटा? Study of animals. This is very important. Animals. Clear है? What about botany? देखिए, the botany term, it came from a word, Greek word है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें. The Greek word is there, which is botany. ग्रीक में बोटेन कहा जाता है. पता है किसको कहते हैं? ग्रीक पीपल्स. They call the botany, which is in English it is pasture, pasteur, pasture. और हिंदी में से चारागाह कहा जाता है. चारागाह. चारागाह वो जगह होती है जहां पे हम पशु को चराते हैं. Where the cattle or animals they will graze over. वो ग्रेजिंग करते हैं, वहां पे घास खाते हैं. और अपनी भाषा में हम इसे घासनी कहते हैं. घासनी मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसी को घासनी कहते हैं. और पर्टिकुलरली वी आर इन हिमाचल और इट इज हिमाचली फ्री बायोलॉजी क्लासेस. सो बच्चों, इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स घासनी को हम, मैं यहां लिख रहा हूं, रुट्टा कहते हैं. रुट्टा अपनी कॉमन लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, इस पर्टिकुलर इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे नॉलेज में है, ये रुट्टा कहा जाता है जहां पे ग्रास होता है. और हम पशुओं के लिए वी कट द ग्रास फॉर आवर कैटल्स फ्रॉम आवर पास्चर. घासनी, रुट्टा, वहां से घास लाते हैं. कुल मिला के बात क्या है कि घासनी के अंदर क्या होता है? ग्रास होता है. और ग्रास क्या होता है? प्लांट्स होते हैं. वो दे आर प्लांट्स. So it means botany is something related to plants. आपको वहां पे plants मिलेंगे. Okay. Here similarly it consists, the phytology word consists of 2 words. Which one? लिख लेंगे ना आप ऐसे. The term phytology consists of 2 Greek words. Which one? See here. One is phyton, ये भी ग्रीक वर्ड है, और वन इज लोगोस. लोगोस तो आपको क्लियर ही है. फाइटोन मीन प्लांट एंड लोगोस मीन स्टडी. तो बोटेन का भी जो निष्कर्ष निकला वो प्लांट्स है, और फाइटोलॉजी का भी फाइटोन मीन प्लांट एंड लोगोस मीन स्टडी. सो आई कैन राइट डाउन एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of plants. Beta, is it clear? So these are the 2 main branches of biology. There are other branches are there. We will study one by one. One is morphology.
We will study about morphology. One by one we will study them. One is anatomy. One is histology. One is cell biology. One is physiology. One is genetics. GENETICS, genetics. One is evolution or evolutionary biology. One is taxonomy. Okay, etc. etc. मैं कुछ एक और बात आपको बताता हूँ. ग्रीक लैंग्वेज के साथ हम यूजुअली ETC लिख देते हैं. बेटा बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा. क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसे? आप भी प्रोनाउंस कीजिए. इट इज अ ग्रीक वर्ड. And what does it mean? It means ET stand for etc. The exact pronunciation is etc. etc. It means of the same kind. कुछ इस तरह के और. इसका मतलब होता है कुछ इस तरह के और. So we will study the other branches. There are, I have told you that there are 100 of the branches are there now. Some of them are there. We will study them one by one. Morphology, anatomy, histology, cell biology, physiology, genetics, evolution, taxonomy. Other branches are there, like there are so many. Phenology, ethology. There are so many branches are there. We will study them one by one. Okay. In other branches, we will start with the morphology. So, one of the branch of biology is morphology. वैसा ही करेंगे. There are two Greek words. Okay, one is morphos, one is logos. तो मैं लिख रहा हूं. The word morphology consists of, ये दो अक्षरों के मिलने से बना है, consists of two Greek words. कौन कौन से बेटा? One is morphos. Morphos meaning external characters. ठीक है? External characters like form, shape, size. मॉर्फोस जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है आकार, बनावट और मतलब बनावट और आकार कैसा है, कितना बड़ा है, जो दिख जाता है हमें, हम जो देख सकते हैं वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. एंड लोगोस मीनिंग और मीन्स क्या? स्टडी. तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी बेटा? नाम से पता लग रहा है ना हमें. गेट टू नो दैट. मैं लिखूंगा द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the branch of biology which deals with the study of external characters of organism. क्योंकि बायोलॉजी में तो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ेंगे. वी विल स्टडी द ऑर्गेनिजम्स.
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। और हम जो यूजली जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं वे नेक्ड आई, ये जो खुली आंखें हमारी आंखों से देखते हैं ना, तो मैं लिख रहा हूं विथ नेक्ड आई। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हम देख पा रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, वो हो गया मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? क्लियर है बात आपको? नाउ वन मोर वर्ड इज देयर इज एनाटॉमी। दिस इज एनाटॉमी। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पा रहे हैं, यू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ मैंगो ट्री, यू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ पीपल्स ट्री, फाइकस वैंगलेंसी, फाइकस रिलीजियोसा हम पढ़ेंगे, बॉटेनिकल नेम्स भी पढ़ेंगे, अभी कोई बात नहीं ऐसी है। पीपल के ट्री की मॉर्फोलॉजी आपको पता है कि वो कैसा दिखता है। यू विल रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजी। आप पता लगाते हैं ऑर्गेनिज्म का कौन सा। यू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइन, यू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट, यू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ डॉग, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो मॉर्फोलॉजी से रिकॉग्निशन होता है, पहचान आती है किसी ऑर्गेनिज्म की। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज एनाटॉमी। द वर्ड इज एनाटॉमी। देयर आर टू ग्रीक वर्ड्स। मैं लिख रहा हूं the word anatomy consists of two Greek words। कौन से बेटा? एना एंड टेमिनीन। Ana and Taminin. Ana means as under, and Taminin means to cut. To cut, कट करना, किस चीज को काटना। तो देखिए ये कुछ जो वर्ड है वो ऐसे बता रहा है, जब हमने उसको स्प्लिट किया, कि काटने के बाद अंदर क्या दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है। सपोज इफ आई एम आस्किंग यू कि यू हैव टू स्टडी माई मॉर्फोलॉजी, तो यू विल टेल अबाउट मी कि सर आपकी जो फेस है वो ऐसा है, दो आंखें हैं, ऐसी हैं, वैसा है। मैं आपको मैंगो ट्री की अगर आपसे मॉर्फोलॉजी पूछता हूं, आप बोलेंगे सर कि उसमें इस तरह के पत्ते होते हैं, उसमें फ्रूट लगता है जो येलो कलर का होता है, कुछ इस तरह से आप मुझे बताएंगे। यू विल टेल लाइक दिस। व्हाट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री अंदर से कैसा दिखाई देता है, या उसके लीव्स, व्हाट इज द इनसाइड व्यू ऑफ देम। या मैं आपसे पूछूं कि मेरे अंदर क्या है, तो हाउ यू विल गेट टू नो दैट। आप क्या करेंगे साइंस में? यू हैव टू जस्ट कट मी। आप कट लगाएंगे एंड यू विल सी व्हाट इज देयर इनसाइड। आप कट करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि नीचे क्या है, वो आप देख लेंगे। तो दैट पर्टिकुलर स्टडी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आप कट करने के बाद देखेंगे वो आपको क्या दिखाई देगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है वो आपको दिखाई देगा। सो एनाटॉमी जो है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच एंड इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal characters of organisms after
जब आपने उसको कट किया, तो सपोज आपने किसी ऑर्गेनिज्म को कट किया, तो मैंने आपसे पूछा कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर देर आर 2 किडनीज, देर इज अ हार्ट, है ना, देर इज लीवर, देर इज इंटेस्टाइन, देर इज स्टमक, किडनीज है, हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जो आपको दिख रहा है। क्लियर है? और ये पर्टिकुलर स्टडी एक कट के बाद आपको दिखाई दे रही है। आप किस लेवल पे स्टडी कर पा रहे हैं? ऑर्गन्स की लेवल पे। ऑर्गन आपने पढ़ा होगा 9th और मैट्रिक क्लास में, यू हैव स्टडीड वेल, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, बट यू हैव स्टडीड इट अर्लियर कि ऑर्गन की स्टडी आप कर रहे हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर वन कट एट ऑर्गन्स लेवल, एट ऑर्गन्स लेवल, ऑर्गन की लेवल पे जो आप स्टडी कर रहे हो वो एनाटॉमी है। मैंने आपसे पूछा कि कैसा है हार्ट, तो आप कहेंगे सर वो ऐसे जैसे आप शेप बनाएंगे इस कलर का है। मैं पूछता हूं व्हाट काइंड ऑफ किडनीज, कैसी शेप है, क्या कैसी दिखाई देती है किडनीज, तो आप बोलेंगे सर इट इज वीन लाइक एंड रेडिश ब्राउन इन कलर, ऐसा दिखेगा आपको। पर अगर मैं आपसे अब ये प्रश्न करता हूं, आई विल आस्क यू कि किडनी अंदर से कैसी दिखाई देती है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसे है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कट दैट किडनी आल्सो। अब सेकंड कट यू विल गिव, और फिर क्या करना पड़ेगा हमें? हम वहां से उसका बहुत पतला सेक्शन लेंगे, वी विल टेक वेरी फाइन सेक्शन, ठीक है, एंड देन वी स्टडी इट ऑन माइक्रोस्कोप। तो वो वहां पे टिश्यू लेवल की स्टडी होगी, वो वहां पे उत्तक की स्टडी होगी, उत्तक जिसे आप टिश्यू कहते हैं। इन दैट केस दिस पर्टिकुलर ब्रांच जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो टिश्यू के लेवल की स्टडी होगी, उसको एक नई ब्रांच का नाम दिया जाता है, तो वो हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी अभी पढ़ाता हूं आपको। तो हमारे पास क्या हुआ? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मींस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एट द लेवल ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन के लेवल पे एनाटॉमी है, ठीक है। और एक और टर्म आती है, वो है हिस्टोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गन का पढ़ा, फिर जब हमने ऑर्गन की भी स्टडी करनी है कि ऑर्गन कैसा बना है, तो भी आपको गिव मोर कट, एक और कट करना पड़ा ना, फिर उसको लिया, फिर स्लाइड पे रखा शीशे की पे, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वो हिस्टोलॉजी कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो अभी देखते हैं व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हाँ, एक और बात बोल दूं, इन केस ऑफ प्लांट्स द हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी इज द वन एंड सेम वर्ड। प्लांट्स में हम एनाटॉमी वर्ड ही यूज करते हैं। इन बॉटनी एनाटॉमी वर्ड इज यूज्ड यूजली, इन एनिमल हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी वर्ड दे आर यूज्ड डिफरेंटली, इनको अलग अलग से यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज हिस्टोलॉजी, लेट अस सी हियर। अब हिस्टोलॉजी देखेंगे बेटा आप। एनाटॉमी के बाद हिस्टोलॉजी, और भी ब्रांचेस हैं, मैं यहां लिख देता हूं, 4 ब्रांचेस आर देयर जो भी हमें स्टडी करनी है। अदर ब्रांचेस में ही वन इज हिस्टोलॉजी, वन मोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल बायोलॉजी। वी विल स्टडी अबाउट द सेल, कोशिका। कोशिका हिंदी में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए कोशिका के बारे में हम यहां बात करेंगे। हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूं, लिख रहा हूं द वर्ड हिस्टोलॉजी। द वर्ड हिस्टोलॉजी consists of 2 Greek words. ओके, कौन कौन से? हिस्टोस
एंड लोगोस। हिस्टोस का मतलब होता है, जो ग्रीक में हिस्टोस बोलेंगे, इंग्लिश में मीनिंग है क्या? टिश्यू। एंड लोगोस मीन स्टडी बेटा। तो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? विच इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वो तो मुझे बार बार ही लिखना पड़ेगा ना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच deals with the study of tissues, which deals with the study of tissue under microscope. This is very important to know. ये बेटा नोट करने वाली बात है कि हिस्टोलॉजी में आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जबकि एनाटॉमी, जब एनिमल के केस में बात करो ऑर्गन लेवल पे, तो आप सिर्फ अपनी आंखों से देखेंगे, अनएडेड आई का यूज करेंगे आप वहां पे, और यहां पे आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? दिस इज हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी मैं जब आपके साथ नेक्स्ट क्लास में सेल के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपसे फिर सेल बायोलॉजी के लिए डिस्कशन करूंगा। अभी हम करेंगे आपके साथ फिजियोलॉजी। वन ऑफ द टर्म इज फिजियोलॉजी। देयर आर टू ग्रीक वर्ड्स अगेन, वन इज physis, one is logos. So the word or the term physiology consists of two Greek words. हमें तो सिर्फ इसको स्प्लिट करना आना चाहिए। कौन कौन से बेटा? physis एंड logos तो आपको पता लग ही गया है। physis means functioning. Physis means functioning, and logos mean study. Physis mean functioning and logos mean studies. देखिए, we the living organism, we consist of cell. आपने 9th क्लास में पढ़ा, मैट्रिक में पढ़ा, we are consisting of cell. We are made up of cells. कोशिका के बने हुए हैं हम लोग। Inside our cell, many functions are going on. How these processes they are occurring? ये processes कैसे हो रहे हैं? ये जो स्टडी है वो फिजियोलॉजी में आएगा। So what is physiology? The branch of biology. वो कैसे कार्य करता है ना, कोई भी ऑर्गन, कोई भी शरीर, कोई भी टिश्यू कैसे काम करता है, कोई सेल कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी स्टडी फिजियोलॉजी में आएगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of functioning of organism's body. Organism's body. Is it clear or not? So, the physiology is the branch of biology which deal with the study of functioning of organism. किसी organism की body कैसे काम करती है, कैसे उसके organ काम करते हैं, है ना? So this is called the physiology. So today we have studied that what is biology, what is the two main branches, zoology and botany, which is also called phytology. Then we have studied morphology, anatomy, histology, physiology. Some of the branches are there. So